Hello and welcome to GMAT by PW, where you and I keep working together in order to ensure that you go on to get a great score in your GMAT exam. In case you're new here, my name is Vikrant and I'm your personal coach for all things related to verbal reasoning. So let's go ahead and dive into our second practice session of the GMAT Master Series. In this particular session, you and I will spend some time focusing on identify the inference questions. So yes, that's going to be our focus, a very important, a very frequently asked question type, and it is going to add value not only to your critical reasoning questions, but also to your reading comprehension passages. After all, यार passages में भी तो हमसे inferences पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए इसे भी देखना equally important है हमारे लिए. So before I begin, when we say identify the inference, you notice these questions that ask you which of the following can be inferred on the basis of the passage, which of the following has been implied by the author, which of the following the author is most likely to agree with or least likely to agree with. All those sorts of things are going to essentially be answered correctly if you know this question type inside out. So before I begin, what exactly do we mean by an inference? Well, technically, if I simplify it, I will say that inference is nothing but an unstated conclusion. So we are given a paragraph followed by our answer choices. We need to evaluate, or we need to basically treat each one of these answer choices as something that can be concluded from the information given above, or at least that is the claim made by every answer choice. Your and my job is to verify that claim. We go to every answer choice and we apply this label true, false, or can't say to each one of those, and then proceed from there. So let's begin our work together. So here is a question on your screen. Why don't you hit pause right here, answer the question, and then join me for a discussion? Welcome back. Let's go. So the statements above, if true, best support which of the following conclusions? मतलब सीधा सीधा ही पूछ लिया कौन सा conclusion इस information से support हो रहा है. So first up, let us start by looking at the statements that are given above. So first, high levels of fertilizer and pesticides needed when farmers try to produce high yields of the same crop year after year pollute water supplies. तो देखो ये हमें एक piece of information दे रहा है क्या यार, अगर farmer year after year same crop ही लगाए है ना, let's say you are growing wheat or you're growing paddy, rice, soybean, sugarcane, whatever, year after year, if you are sowing the same crop and you want to get a high yield from it, high yield यानी के आप चाहते हैं पैदावार ज्यादा हो, उपज ज्यादा हो, पर हेक्टेयर आप जो काम की चीज है आपको वो ज्यादा मिले, तो क्या करना पड़ता है? यू नीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. तो देखो होता क्या है ना, एक प्लांट को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्राउंड से, तो अब उसने ग्राउंड से वो न्यूट्रिएंट्स ले लिए. अब आप वही क्रॉप बार बार लगाएंगे अगर उसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे, तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो प्रोग्रेसिवली डिप्लीट होते जाएंगे. सो उनको आपको फिर एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा बाय द विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर. प्लस अब पेस्ट्स भी तो लिविंग बीइंग्स, लिविंग एंटिटीज ही है ना. जब वो देखते हैं कि ओ इस जगह पे मुझे हर साल खाना खाने को मिलता है, तो वो भी वहां पे थोड़ा ज्यादा नंबर्स में आते हैं, फिर आपको पेस्टिसाइड्स भी ज्यादा यूज करने पड़ते हैं. तो ये बता रहा है कि यार ये सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एक ही जगह पे जब आप लगाते हैं तो आपको हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं. उससे क्या होता है? इट गोज ऑन टू पॉल्यूट द वाटर सप्लाईज. Experts therefore urge farmers to diversify their crops and to rotate their plantings yearly. तो इसकी वजह से अब एक ही प्रॉब्लम आ रही है ना हमें, तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं यार आप सेम क्रॉप मत लगाएं ना, हर साल रोटेट करते रहें, हर साल अलग अलग क्रॉप्स लगाएं और थोड़ी डाइवर्सिटी लेके आए, अलग अलग तरह की क्रॉप बेसिकली वही लगाएं. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टू रिसीव गवर्नमेंटल प्राइस सपोर्ट बेनिफिट्स फॉर अ क्रॉप, farmers must have produced that same crop for the past several years. अच्छा, इसमें हमें गवर्नमेंट
स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। स्कीम क्या है हमारी? हमारी स्कीम बेसिकली ये है कि आपको अगर चाहिए गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट बेनिफिट, तो सरकार कई बार क्या करती है ना, आप जब क्रॉप उगाते हैं तो आपको बोलते हैं यार कि अगर आप ये वाली क्रॉप उगा रहे हैं ना, तो हम आपको कुछ पैसा देंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट यू ग्रो दैट क्रॉप, राइट? या फिर अगर स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट की बात करूं, तो हम वो एक प्राइस अनाउंस कर देते हैं ना कि इस प्राइस पे खरीदी लिया जाएगा आपसे, तो आपको एक वो सर्टेनिटी आ जाती है। तो इस तरह की चीजें इसेंशली के गवर्नमेंट कुछ प्राइस सपोर्ट बेनिफिट्स देंगी कि यानी कि आप अगर ग्रो करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस आपके लिए गारंटीड है, लेकिन you will be able to receive that benefit only if you've grown that same crop for the past several years। तो उस केस में आपको पिछले कई सालों से सेम क्रॉप उगाया होना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं ए, द रूल्स फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ फार्म प्राइसेस वर्क अगेंस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ट्रू फॉल्स कांट से। तो देखें, हम एक कारण क्या है वाटर पॉल्यूशन का? साल दर साल सेम क्रॉप उगाना। तो इसके लिए क्या चाहिए? अलग अलग क्रॉप्स लगाएं। अगर आप सेम क्रॉप उगाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा। और अगर आपको प्राइस सपोर्ट बेनिफिट चाहिए तो फिर आप अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे तो यू विल मिस आउट ऑन दिस बेनिफिट। तो आर दीज टू कॉन्ट्राडिक्टरी? इज दिस स्कीम अफेक्टिंग योर एबिलिटी टू फाइट वाटर पॉल्यूशन? यस। व्हाई? बिकॉज इट एनकरेजेस अ प्रैक्टिस that can make your water more polluted. So this is true. आगे देखें B, the only solution to the problem of water pollution from fertilizers and pesticides is to take farmland out of production. हम बोल रहे हैं यार इकलौता तरीका क्या है वाटर पॉल्यूशन इन दोनों सोर्सेस से दूर करने का कि यार खेती करना ही बंद कर दो? नहीं ना, ये तो गलत है। इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, प्लांट ये क्रॉप्स रोटेट कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो ओनली सॉल्यूशन तो ये डेफिनेटली नहीं है। तो ये गया सी, फार्मर्स कैन कंटिन्यू टू मेक अ प्रॉफिट बाय रोटेटिंग डाइवर्स क्रॉप्स, thus reducing costs for chemicals but not by planting the same crop each year। अब हम ना इनके प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट वन एक तरीका क्या है भाई, आप रोटेट करें क्रॉप्स हर साल। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आपका फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का एक्सपेंस कम होगा। एंड सी सेज इफ इट इज ट्रू देन इट सेज कि यार इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड इट सेज दैट दिस प्रॉफिट is going to be higher than the profit that you would receive by not rotating the crops। कि रोटेट करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, रोटेट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर आप रोटेट करते हैं तो हाँ, यू आर सेविंग ऑन द मनी स्पेंट ऑन these chemicals, but then you are also missing out on the price support benefits। You are also missing out on high yields maybe। तो क्या ये जो कॉस्ट की सेविंग है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वाली, विल दिस आउटवे the loss that you'd have by missing out on price support benefits? Will that strategy still lead to high yields to compensate for not growing that same crop? We don't know, and that is why C is can't say, true तो नहीं है। Okay, D, new farming techniques will be developed to make it possible for farmers to reduce the application of fertilizers and pesticides। will be developed, ये तो वैसे फ्यूचर में, हमें क्या पता। यहाँ पे तो ये भी नहीं दिया हुआ ऐसी कोई एफर्ट हो रही है या नहीं। So that's also can't say। Then let's have a look at E, governmental price supports for farm products are set at levels that are not high enough to allow farmers to get out of debt। अच्छा, बाकी सब छोड़े, are the farmers in debt? We don't know। Okay, अगर मैं मान लेता हूं कि चलो they are in debt, तो ये जो प्राइस सपोर्ट बेनिफिट्स हैं, they are not high enough to allow them to get out of debt। बहुत सारे अननोन्स हो गए हमारे पास। हाँ, and therefore even this is can't say। So the only option that is true here is option A। तो उसे आंसर मार्क करेंगे and we of course go ahead and reject the
rest of the options. So that's question number 1. Let's move over to the next one now. Here is question number 2 for you. Once again, hit pause, solve the question, and then join. Okay? So your time starts now. Welcome back. I hope you've answered the question. Let's attack it. So if the statements above are true, which of the following must also be true of Cheever College? So once again, if this is true, which of the following must be true is an inference question. So चलिए देखें. Cheever College offers several online courses via remote computer connection in addition to traditional classroom based courses. तो बेसिकली एक कॉलेज है, ये ऑनलाइन कोर्स ऑफर करता है, आप घर पे बैठ के पढ़ लें या फिर आप क्लासरूम में आकर के पढ़ाई कर लें जैसा कि ट्रेडिशनली होती है. So a study of student performance at Cheever College found that overall the average student grade for online courses matched that for classroom based courses. So average student grade match होने का मतलब क्या? आपके पास ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपके पास क्लासरूम वाले बच्चे हैं. हाँ, इधर ऑनलाइन वाले बच्चों में भी जो एवरेज परसेंटेज आ रही है, लेट अस से दैट इज 65% मार्क्स, और क्लासरूम वालों में भी 65% मार्क्स ही हैं. तो दोनों जगहों पे एवरेज जो है वो मार्क्स की इक्वल है. इन दिस कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज ग्रेड, कोर्स विड्रॉल्स वेर वेटेड एज इक्विवेलेंट टू अ कोर्स फेलियर. ओके, तो इस कैलकुलेशन के बारे में हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि अगर आपने किसी कोर्स से विड्रॉ कर लिया तो उसको आप फेलियर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक, तो भाई मान लो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया चीवर कॉलेज में. ठीक, मैंने 3 कोर्सेज ज्वाइन किए लेटेस्ट से, या 3 भी क्यों, लेट्स कीप इट सिंपल. तुमने और मैंने, हम दोनों ने चीवर कॉलेज साथ में ज्वाइन किया. एक कोर्स ज्वाइन कर रहे थे हम, मैं भी था, आप भी थे. हाँ, मैंने विड्रॉ कर लिया. अब विड्रॉ करने का मतलब दे मार्क इट एज फेलियर, यानी कि एक तरह से ये मुझे 0 नंबर देंगे. ऑन दी अदर हैंड यू कंटिन्यूड, आपके जो मार्क्स आए सो आए, आपने कुछ XYZ मार्क्स लिए सो लिए, यू कंटिन्यूड, आई विड्रू. हाँ, अब साथ में हमें क्या पता है, रेट ऑफ विड्रॉल वाज मच लोअर फॉर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लासरूम बेस्ड कोर्सेज देन फॉर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑनलाइन कोर्सेज. तो रेट बहुत लो था क्लासरूम में. तो यानी कि लेटेस्ट से क्लासरूम में कोई 5% बच्चा है दैट ड्रॉप्स आउट. आपने एडमिशन ली और फिर कोर्स ड्रॉप कर दिया. जबकि ऑनलाइन में यही नंबर, व्हेन यू से इट इज मच लोअर, तो ऑनलाइन में वो नंबर लेट्स पुट इट एट व्हाट, से 20%. होता भी है ना, मैंने देखा ना कोर्सेरा में बहुत लोग कोर्स शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ जाते हैं. अब लेकिन कॉलेज में अगर एडमिशन लिया है तो ज्यादातर लोग कंटिन्यू कर ही लेते हैं. सो थिंक 5% बंदा ड्रॉप आउट करता है ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में, 20% बंदा ड्रॉप आउट कर जाता है ऑनलाइन वाले कोर्सेज में. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अब पढ़ना शुरू करते हैं ऑप्शंस को. ए, अमंग स्टूडेंट्स हु डिड नॉट विड्रॉ, students enrolled in online courses got higher grades on average than students enrolled in classroom based courses. अब देखो हम किन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हु डिड नॉट विड्रॉ. अब हमारे पास एक डेटा पॉइंट है. डेटा पॉइंट क्या है, ऑनलाइन वालों की एवरेज भी 65% थी, क्लासरूम वालों की एवरेज भी 65% थी. लेकिन हमें एक और चीज पता है कि ऑनलाइन में significantly higher number of people dropped out from their course. और जब आप ड्रॉप आउट करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड अ फेलियर, आपको F मिलेगा. ग्रेड वैसे वो होती है ना ABCDEF. हाँ, मैंने परसेंटेज टर्म में बोला, बट लेट अस से एवरेज ग्रेड जो है, औसत ग्रेड भी अपन परसेंटेज ही लगा लेते हैं. तो 65% ही चल रही है, लेकिन जो ड्रॉप आउट हुआ उसको तो 0 नंबर मिल रहा है. अब ऑनलाइन में अगर ज्यादा लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लेट अस से 100 people started the online course. Okay, 20 dropped out, 80 continued. 80 continued, 20 did not continue. हाँ, अब इनको तो मिला 0 और इनको जो मार्क्स मिले सो मिले. जबकि यही क्लासरूम वालों में क्या था, 100 में से 95 कंटिन्यूड, ओनली 5 ड्रॉप्ड आउट. तो 5 लोगों को 0 नंबर, बाकी 95 को जो नंबर मिले मिले. और आप जब इन 100 की एवरेज निकालेंगे तो इधर 5 को 0 है. वो 65% बेसिकली कंट्रीब्यूट किसने किया, इन 95 स्टूडेंट्स ने. जबकि यहां पे 65% की एवरेज किससे आई, इन 80 स्टूडेंट से. तो ऑब्वियसली
अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं तो इन 80 लोगों ने मिलकर के ज्यादा स्कोर किया एज कंपेयर टू दीज 95। तभी तो इन 80 लोगों के मार्क्स 95 लोगों के मार्क्स के बराबर आ गए है ना। सो दिस इज 80, लेट्स से 100 नंबर का पेपर था तो इनका टोटल स्कोर कितना था? 80 इंटू 65। नो सॉरी, नॉट 80 इंटू 65, टोटल स्कोर जो भी था इनका यहाँ पे 95 इंटू 100 दैट्स द टोटल स्कोर, उसका 65% जो आया वो, और इधर 80 इंटू 100 उसका 65% जो आया वो इक्वल आएगा आपके पास। तो वो सेम नंबर जो यहाँ 95 लोग लेकर के आए थे, सेम टोटल मार्क्स, वो यहाँ पे 80 लेकर के आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया, इन 80 ने जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, वो ऑन एवरेज इन लोगों से बेहतर स्कोर लेकर के आ ही रहे हैं। सो दैट्स ट्रू। बी देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड पर कोर्स एट द स्टार्ट ऑफ द स्कूल टर्म is much higher on average for the online courses than for the classroom based courses। हम बोल रहे हैं शुरुआत में जब सेशन शुरू होता है तो ऑनलाइन वाले नंबर्स का स्टूडेंट्स का नंबर काफी ज्यादा होता है। हमें नहीं पता, इट कुड बी हायर, मच हायर, अ लिटिल हायर, इक्वल, लोअर, हाउ डू वी नो? ऑल वी नो इज दो कोर्सेज हैं, एक में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, एक में ड्रॉप आउट रेट कम है। अब वो एब्सोल्यूट नंबर्स का कोई इन्फर करने के लिए हमारे पास यहाँ डेटा नहीं है, तो आप इसे कांट से लगा दें। देन सी, देयर आर नो स्टूडेंट्स हु टेक बोथ एन ऑनलाइन एंड अ क्लासरूम बेस्ड कोर्स इन द सेम स्कूल टर्म। अगेन वी डोंट नो, यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ कि आप एक ही कोर्स ले सकते हैं। हो सकता है किसी बंदे ने दो कोर्सेज लिए हो, जैसे हम तो अभी इंडिया में रह रहे हैं, आपको पता है ना यूजीसी ने 2022 से अलाउ किया हुआ है कि आप एक दो डिग्रीज पैरेलली कर सकते हैं, एक फुल टाइम एक ऑनलाइन। और अब 25 में तो एक और चेंज कर दिया, बोले यार दो तुम फुल टाइम रेगुलर वाली डिग्रीज भी साथ में कर सकते हो, दी ओनली कंस्ट्रेंट इज उनका टाइम सेम नहीं होना चाहिए, एक मॉर्निंग कॉलेज में कर लो, एक इवनिंग कॉलेज में कर लो। सो so you have that there. Okay. D, among Cheever College students with the best grades, a significant majority take online rather than classroom based courses। कि अच्छा, अगर हम टॉपर्स उठाएं तो ये बोल रहे हैं टॉपर्स में आपको ऑनलाइन कोर्सेज वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, क्लासरूम वाले कोर्सेज टॉपर्स में कम मिलेंगे ना। जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं देते हैं ना टॉप 100, फिर हमारे यहाँ बताते हैं ना, अरे टॉप 100 में इतने लड़के इतनी लड़कियां, लड़कियां ने फिर बाजी मारी, ऐसी ऐसी चीजें आती रहती है ना न्यूज में। तो ये यहाँ पे हमको बोल रहे हैं अरे टॉपर्स में ना ऑनलाइन स्टूडेंट बाजी मारते हैं। भाई हमें नहीं पता, उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ टॉपर्स का यहाँ पे। सो वंस अगेन आवर लेबल हियर विल बी can't say। E, courses offered online tend to deal with subject matter that is less challenging than that of classroom based courses। once again online वाला challenging है, offline वाला challenging है, उसके comparison के लिए कोई information यहाँ पे नहीं है, इसलिए E भी क्या होगा? can't say। and therefore our answer here सिर्फ A ही true है, so that is going to be our answer in this particular case। And with that, let me take you over to your next question. Question number 3. Once again, you know what to do. Hit pause, answer, and then join in. चलिए शुरू करें। Which of the following conclusions is most strongly supported by the information above? So, inference वाला सवाल, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स। हाँ, अब देखो, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम जो आपको किसी चीज की एक्सेस देता हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कंप्यूटर जिसमें मैं लॉग इन कर सकता हूं पासवर्ड डाल के, तो वो एक्सेस कंट्रोल हो रही है किससे? पासवर्ड से। हाँ, ऐसे हमारे पास फोन्स होते हैं जिनमें आप एक्सेस पासवर्ड से या पैटर्न से ले सकते हैं। But then your phone also allows you to access it through your face, through your fingerprints। तो कोई एक्सेस अगर ऐसी चीज पे बेस्ड हो जो आपकी बॉडी का कोई मार्कर है, आपका साउंड, आपका फेस, आपके रेटिना, आपका फिंगरप्रिंट, ये सब आगे दिया हुआ है ना। हाँ, तो आप उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स। अब वो एक्सेस लैपटॉप की है कि फोन की है कि किसी एक बिल्डिंग की है कि बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर हिस्से की है कि लिफ्ट की है, वट एवर,
किसी भी चीज की हो सकती है ना. सो यू यूज दीज टू रेगुलेट एडमिशंस टू रिस्ट्रिक्टेड एरियाज. दे वर्क बाय डिग्रीज ऑफ सिमिलैरिटी नॉट बाय आइडेंटिटी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इट? यार अब मैं अपने फोन पे जब अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूं तो वो ये थोड़ी देख रहा है कि फिंगरप्रिंट विक्रांत, ये वो फिंगरप्रिंट देख के थोड़ी बोलता है ओ विक्रांत ना. वो सिर्फ ये देखता है कि हाँ ये फिंगरप्रिंट जो है इसको एक्सेस है. अब इसमें इशू क्या है? ये आफ्टर ऑल के बाद आप पढ़े, इवन द सेम फिंगर विल रेयरली लीव एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रिंट्स. अब मैं हर बार अपनी फिंगर सेम तरह से तो नहीं लगाऊंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा. साथ में यार मंथ ऑन मंथ क्या पता हल्का फुल्का फर्क भी आता हो फिंगरप्रिंट्स में. तो मैं हर बार जब फिंगरप्रिंट लगाता हूं अपनी, तो मेरे फोन को एग्जैक्टली सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी मिल रही है, आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट्स थोड़ी जा रहे हैं. तो क्या कर रहा है वहां, कोई ना वो मार्जिन सेट किया होगा कि अच्छा ये फिंगरप्रिंट वाले को एक्सेस देना है, प्लस माइनस 3% हुआ तो चला लेंगे, प्लस माइनस 3% हुआ तो हम काम चला लेंगे. हाँ, सो ये दे वर्क बाय डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी नॉट आइडेंटिटी. उसे ये नहीं पता चलता है कि विक्रांत है, उसे सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ इस वाले फिंगरप्रिंट को एक्सेस देनी थी और अभी जो फिंगरप्रिंट मिला वो प्लस माइनस 3% है, विच इज फाइन. इतना सिमिलर का मतलब वही होता है ना, सुपरफिशियली देखने में सेम सेम लगे मगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो. हाँ, such systems can be adjusted to minimize refusals of access to legitimate access seekers. हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं, सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं किस चीज के लिए? टू मिनिमाइज रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस. अब मैंने अपना थंबप्रिंट लगाया, मुझे वो मेरा फोन एक्सेस ही नहीं दे रहा, तो एक तरह से क्या हो गया, रिफ्यूजल टू एक्सेस हो गया. तो आप इसे फिर एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इस तरह की चीजें ना हो, राइट. लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट से क्या होगा, दे इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एडमिटिंग इम्पोस्टर्स. अब वो एडजस्ट करने का मतलब क्या, आप मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाएंगे. हाँ, अगर आप हर बार बोले कि नहीं परफेक्ट मैच चाहिए, तो ऐसा तो फिर तो हर बार मुझे ही एक्सेस नहीं मिलेगा. बट अगर आप इम्परफेक्ट मैच की तरफ जाते हैं, आप बोलते हैं अच्छा प्लस माइनस 0.5% चलेगा, मेरे को ना 0.5% डिविएशन चलेगी, तो भी हो सकता है कि 10 में से 3 बार मुझे रिफ्यूज कर दिया जाए. तो फिर आप बोलते हैं अच्छा इसको ना 2% डिविएशन पे डाल दो. तो 2% डिविएशन पे डाला तो एक ही बार मना किया 10 में से. अच्छा फिर आपने बोला 3% डिविएशन तक परमिट कर दो. 3% डिविएशन परमिट करने से अब मुझे 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स एक्सेस मिल जाती है मेरे फोन की. लेकिन अब वो जो डिविएशन 3% तक चली गई, उससे क्या हुआ, कोई बंदा जिसके फिंगरप्रिंट्स मेरे से अब मिलते जुलते हैं, हाँ, दैट पर्सन कैन ऑल्सो गेन एक्सेस टू माई फोन. वो इम्पोस्टर्स को भी एक्सेस मिल जाएगी. तो इसमें बेसिकली हमें बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में बताया, वो कैसे काम करते हैं वो बताया, फिर इनमें एडजस्ट करते हैं सिमिलैरिटी के लिए, जिससे एक चैलेंज जो आता है उस चैलेंज के बारे में बताया. अब ऑप्शंस देखना शुरू करें हम लोग अपने. इफ अ बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम वेर मेड टू वर्क बाय आइडेंटिटी, इट वुड नॉट प्रोड्यूस एनी करेक्ट एडमिटेंस डिसीजंस. हम बोल रहे हैं कि यार ये सिमिलैरिटी की जगह अगर आइडेंटिटी पे शिफ्ट कर देंगे तो ये सही लोगों को एंट्री देना बंद कर देगा. क्यों? आप बायोमेट्रिक को आइडेंटिटी के साथ लिंक कर दीजिए, जहां पे वो बायोमेट्रिक मैच होंगे एक्सेस मिल जानी चाहिए ना. और हो सकता है ना भी मिले, हमें पता नहीं यार वो आइडेंटिटी का इंप्लीकेशन क्या है. हाँ, मैं तो खाली जीके यूज कर रहा हूं, बट हम उस तरह की चीजें अगर यूज करनी पड़े तो ये डेटा इनसफिशिएंट है. तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये कांट से हो जाएगा. लेट्स लुक एट बी. If a biometric access control system reliably prevents imposters from being admitted, it will sometimes turn away legitimate access seekers. अब हम क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम ऐसा है जो इम्पोस्टर्स को आने ही नहीं देता. बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इम्पोस्टर्स आने ही नहीं देता, सो इट विल समटाइम्स टर्न अवे लेजिटिमेट एक्सेस सीकर्स. तो यार ये तो होगा क्यों, क्योंकि सिमिलैरिटी है ना. अब आप मिनिमाइज करते हैं अगर रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू लेजिटिमेट एक्सेस सीकर्स, तो लाइक्लीहुड बढ़ती है इम्पोस्टर्स के आने की. अब अगर आपने इम्पोस्टर के आने की लाइक्लीहुड को, प्रोबेबिलिटी को 0 कर दिया, तो उसका मतलब कभी कभार फिर यहां पे रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस हो जाएगा. लेजिटिमेट एक्सेस सीकर को भी वी कैन इन्फर इट from the last two sentences. So B is true. Just put it here. C, biometric access control systems are appropriate only in situations in which admittance of imposters is less of a problem than is mistaken refusal of access.
ये क्यों भाई? Why are they appropriate only in these situations? Why aren't they appropriate in some other situations? इन situations में ऐसा क्या खास है? How do they differ from other situations? ऐसा कोई डेटा, ऐसा कोई इनपुट तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं. So therefore डेटा इनसफिशिएंट, आप इसे कांट से बोल दीजिए. डी, नॉन बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स. नॉन बायोमेट्रिक यानी कि वो देखा वो दूसरे कोई है ना, जिसमें आप पिन यूज कर रहे हैं, पासवर्ड यूज कर रहे हैं, पैटर्न यूज कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज बेस्ड फॉर एग्जांपल ऑन न्यूमेरिकल कोड्स आर लेस लाइकली देन बायोमेट्रिक वंस टू एडमिट इम्पोस्टर्स. क्यों? व्हाई आर दे लेस लाइकली? what do we know about non biometric access control systems from this data? हमें नहीं पता. हमें सिर्फ ये पता है हाँ बायोमेट्रिक एक्सेस वाले कभी कभार इम्पोस्टर्स को एक्सेस दे सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट मार्जिन इंट्रोड्यूस्ड इन एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन सिमिलैरिटीज. क्या इनमें नॉन बायोमेट्रिक वालों में चांसेस कम होते हैं? हमें क्या पता. क्या पता होते हो, क्या पता ना होते हो. सो नथिंग टू बेस आवर डिसीजन ऑन. नो डेटा प्रोवाइडेड. कांट से. E. Anyone choosing an access control system should base the choice solely on the ratio of false refusals to false admittance. क्यों भाई? solely इस पे क्यों करोगे? आप कंफर्ट पे करो, आप कितना सेंसिटिव है जगह वो देख सकते हैं, आप कॉस्ट के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. Why should you base this solely on this? तो इस solely को सपोर्ट करने के लिए पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. And therefore we'll go ahead and label it as can't say, and thus हमारा सिर्फ ऑप्शन बी ट्रू है तो बी को आंसर मार्क करेंगे, बाकी सबको रूल आउट कर देंगे. So that takes care of your question number 3. Let me take you over to the next one now. So once again, pause the video, solve the question, come back. Welcome back. Let's start. The information in the passage most strongly supports which of the following? तो चलिए पहले information पढ़ लेते हैं. Humans get Lyme disease from infected ticks. टिक्स पता है ना, वो छोटे छोटे कीड़े जो जानवरों पे पाए जाते हैं, डॉग्स वॉग्स को हो जाते हैं ना, वो देखें छोटे छोटे. सो कोई डिजीज है, ह्यूमंस को ये डिजीज किनसे मिलती है? इन्फेक्टेड टिक्स से. तो मतलब ऐसा कोई कीड़ा जो किसी जानवर पे था और इन्फेक्टेड था, वो ह्यूमन पे भी आ गया और तो वो ह्यूमन को काटेगा वाटेगा तो इन्फेक्ट कर देगा. अब टिक्स गेट इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन एनिमल्स विद लाइम डिजीज. टिक्स को इन्फेक्शन किससे होता है? एनिमल से. कौन से एनिमल से? जिसको लाइम डिजीज हो. बट द ईज ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम होस्ट एनिमल टू टिक वेरीज. तो अब पॉज लेते हैं, अब देखते हैं क्या. एनिमल्स के ऊपर टिक्स होते हैं. अब अगर एनिमल को लाइम डिजीज है तो उस टिक को भी लाइम डिजीज हो सकती है. और अगर वो टिक को लाइम डिजीज हो गया एज इन उसको एटलीस्ट जो लाइम डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं वो उसके अंदर जा सकते हैं. और ऐसी टिक अगर किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो ह्यूमन को भी लाइम डिजीज दे सकती है. लेकिन अब एनिमल को लाइम डिजीज है, उसके ऊपर एक टिक रहती है, तो स्टिक में वो एजेंट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो दैट वेरीज फ्रॉम होस्ट एनिमल टू होस्ट एनिमल. है ना, कुछ जानवरों में ऐसा होगा कि वो टिक को बहुत इजीली दे देते होंगे लाइम डिजीज वाले एजेंट्स, कुछ में नहीं देते होंगे. सो अब देखें, विद मोस्ट स्पीसीज ऑफ होस्ट एनिमल ट्रांसमिशन ऑफ लाइम डिजीज टू टिक्स इज एक्सट्रीमली रेयर. सो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, जैसे अगर 100 एनिमल्स हैं जिनको लाइम डिजीज होती है, उन पे टिक्स रहते हैं, तो हम बोल रहे हैं 100 में से 90 तो ऐसे हैं जो मतलब नहीं, बहुत ही रेयर है कि वो टिक को ट्रांसमिट करे. बट व्हाइट फुटेड माइस आर एन एक्सेप्शन. एक स्पीसीज है माइस की विच इज एन एक्सेप्शन, ये रेडिली पास कर देता है भाई लाइम डिजीज टिक्स. तो अगर कोई टिक व्हाइट फुटेड माइस के ऊपर है तो मतलब आप समझो कि उसको वो लाइम डिजीज होएगी. And white-footed mouse populations greatly expand, becoming the main food source for ticks in areas where biodiversity is in decline. Biodiversity, जैव विविधता, यानी कितनी अलग अलग तरह की स्पीसीज रहती है एक एरिया में. तो अगर एक एरिया में बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन पे है, यानी कि नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज डिक्लाइन पे है, तो वहां पर ग्रेट है ना, वहां पे सॉरी व्हाइट फुटेड माउस जो है इसकी पॉपुलेशन ग्रेटली एक्सपैंड कर जाती है. और फिर ऐसे में टिक्स के लिए भी, चूंकि ये ज्यादा है तो उनके लिए भी
ज्यादातर यही होस्ट का काम कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी नाउ नो. अब चलते हैं ऑप्शंस पे. ए, इन एरियाज वेयर मेनी ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड विद लाइम डिजीज, द प्रोपोर्शन ऑफ टिक्स इन्फेक्टेड विद लाइम डिजीज इज स्पेशली हाई. देखो, एक जगह जहां बहुत ह्यूमंस को लाइम डिजीज है, तो इसका मतलब उनके आसपास काफी सारे टिक्स भी ऐसे रहे होंगे जिनको लाइम डिजीज रही होगी. नाउ डज दैट मीन कि वो जो काफी सारे टिक्स जिन्हें जिन्हें लाइम डिजीज थी, दे रिप्रेजेंट अ ग्रेटर प्रपोर्शन? हाँ, कैन आई बी श्योर दैट दे रिप्रेजेंट अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ द ओवरऑल टिक पॉपुलेशन? जरूरी नहीं है. वो नंबर कैसे बढ़ा सकता हूं एक एरिया में मैं इन्फेक्टेड टिक्स का? मैं वो नंबर बढ़ा सकता हूं या तो प्रोपोर्शन बढ़ा के. हाँ, कि भाई अब देखो, एक एरिया में लेट अस से, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट अस से देयर आर 100 टिक्स इन टोटल, और इन टिक्स में अगर मैं बोलूं कि यार 50% टिक्स को लाइम डिजीज है, तो नंबर क्या हो गया? 50. तो ये 50 नंबर 50% से आया. बट मैं ये भी तो कर सकता हूं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक एरिया में 100 टिक्स ना हो, उस एरिया में 1000 टिक्स हो, और उन 1000 में से 5% जो है वो इन्फेक्टेड हो, तो भी तो 50 आ गया. सो यू नोटिस, इन ऑर्डर टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ इन टिक्स विद लाइम डिजीज इन एन एरिया, उसमें दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं. एक सिनेरियो ये है कि परसेंटेज बढ़ जाए, दूसरा सिनेरियो क्या है, उनका एब्सोल्यूट नंबर बढ़ जाए. तो हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि प्रोपोर्शन इन्फेक्टेड ही हाई. हम ये नहीं बोल सकते कि 50, मतलब इस नंबर को अगर बढ़ाना है तो देखो क्या करना पड़ेगा. हाँ, आप या तो इस 50 को 60% कर दो तो नंबर बढ़ जाएगा. दैट्स वन वे आउट. हाँ, आप 60 पे एक एक तरीका क्या है जाने का, ये तरीका परसेंट बढ़ा दो. दूसरा तरीका क्या है, आप परसेंट मत बढ़ाओ, आप ना नंबर ऑफ टिक्स बढ़ा दो. 100 की जगह आपने कर दिया 200, परसेंट ऑफ इन्फेक्टेड स्टिल सेम है 50, तो नंबर अब 100 हो गया ना. तो ये ओवरऑल नंबर ऑफ टिक्स जो इन्फेक्टेड है वो बढ़ाने के दो तरीके हैं. प्रोपोर्शन बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ, या फिर नंबर बढ़ाओ. तो हम ये अगर किसी जगह पे टिक्स लाइम डिजीज वाली ज्यादा है, सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि प्रोपोर्शन ऑफ टिक्स इन्फेक्टेड ज्यादा है. द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टिक्स कैन ऑल्सो बी हाई. तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. therefore this is can't say. Let's go to B. Very few animals that live in areas where there are no white-footed mice are infected with Lyme disease. Can't say. एनिमल्स, भाई एक एरिया है वहां पे व्हाइट फुटेड माइस नहीं है, तो मुझे कैसे पता कि वहां पे बहुत कम जानवरों में ही लाइम डिजीज होगी? हाँ, जानवरों में लाइम डिजीज थोड़ी ना व्हाइट फुटेड माइस वाले टिक से ट्रांसमिट हो रही है, वो तो ह्यूमंस में हो रही है. तो ये तो इज समथिंग दैट वी डोंट हैव एनी डेटा टू बेस दिस ऑन, सो कांट से. सी, ह्यूमंस आर लेस एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग लाइम डिजीज इन एरियाज वेयर बायोडाइवर्सिटी इज हाई. ओके, अगर बायोडाइवर्सिटी है हाई तो फिर क्या होगा? हमें लास्ट सेंटेंस से पता है, जब बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो व्हाइट फुटेड माउस पॉपुलेशन बढ़ती है, टिक्स भी उन पे ज्यादा रहते हैं, और टिक्स बहुत रेडिली इन्फेक्ट हो जाते हैं. तो अगर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन पे है तो यू विल सी अ हायर नंबर ऑफ टिक्स गेटिंग लाइम डिजीज, विच इन टर्न इंक्रीजेस द रिस्क फॉर ह्यूमंस. लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो टिक्स के लाइम डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि माउस के अलावा बाकी स्पीशीज में उनको इन्फेक्ट करने की, बाकी होस्ट स्पीसीज में उनको इन्फेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो अब वो ओवरऑल नंबर ऑफ टिक्स विद लाइम डिजीज कम हो गया, तो ह्यूमंस की प्रोबेबिलिटी भी लाइम डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने की कम हो गई. तो सी ट्रू है. डी, टिक्स फीड ऑन व्हाइट फुटेड माइस ओनली व्हेन अदर होस्ट स्पीसीज आर नॉट अवेलेबल टू देम. कांट से. व्हेन अदर्स आर नॉट अवेलेबल, तो क्या करते हैं, दे बिकम द मेन फूड सोर्स. अब इसका मतलब ये नहीं है मेन फूड सोर्स, अभी भी एक्सक्लूसिव फूड सोर्स नहीं है. तो जब व्हाइट फुटेड पॉपुलेशन होती है, व्हाइट फुटेड माइस होते हैं, तो उनपे जब बाकी एनिमल्स, बाकी स्पीसीज नहीं होती तो इन पे रिलाई करती करती हैं वो. बट जब बाकी ना हो, क्या सिर्फ तभी इनको इन पे रिलाई करेंगी? नहीं, हो सकता है इनके होते हुए भी कर लें.
So can't say. E, the greater the biodiversity of an area, the more likely any given host animal in that area is to pass Lyme disease to ticks. नहीं यार, वो उल्टा वो average probability तो कम ही होगी. We can base this on the last sentence. So even this is can't say. And therefore अब इसमें हमारे पास true option है कोई, बिल्कुल है, option C. So that is going to become our answer to this particular question. And with that, let's now dive into our next question. Move over to the next one. Question 5. Hit pause. Answer. याद रखो, स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है. पॉज करके पहले तुम्हें सॉल्व करना है, फिर जब तुम आओगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. सो पॉज, आंसर एंड देन कम बैक. All right, so let's go ahead and start discussing it now. The statements above, if true, best support which of the following as a conclusion? The statements देखें. Not all life depends on energy from sunlight. Oh, is that so? मैं तो यही मानता था कि all of us basically are solar powered, directly or indirectly. ये तो नई चीज है यार. Microbial life has been found in bedrock more than 5 kilometers below the surface of the earth, and bacteria have been found on the deep ocean floor, feeding on hydrogen and other gases rising from the interior of the earth through vents in the ocean floor. Okay, ठीक है. So not all life depends on energy from sunlight. कुछ ऐसे भी हैं जो यार जहां पे सनलाइट पहुंचती नहीं है यार, 5-5 किलोमीटर डीप अंडर द अर्थ, हाँ, और ओशन फ्लोर्स तक में, और वो सरवाइव कर रहे हैं ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन में, सल्फर में, जो ओशन के फ्लोर के क्रैक्स से बाहर आ रही है, तो उनको सनलाइट नहीं चाहिए. चलिए देखते हैं. ए, द लोकेशन इन द बेडरॉक वेयर माइक्रोबियल लाइफ वाज फाउंड was not near a system of volcanic vents through which hydrogen and other gases rose from the interior of the earth. यार ये गैसेस आ रही थी, ये हमें पता है. वेंट्स थे, ये भी हमें पता है. अब ये वेंट्स जो थे, दे वर नॉट नियर अ सिस्टम ऑफ वॉल्केनिक वेंट्स. अब ये हम कैसे डिसाइड करें भाई? हो सकता है कि ये वॉल्केनिक सिस्टम के वेंट्स हो सकता है ये कोई और वेंट्स हो. वी डू नॉट नो. वी डोंट हैव एनीथिंग टू बेस आवर conclusion on in this paragraph. So data insufficient, can't say. Let's move over to the next one now. Bacteria are able to exist at the molten center of the earth. देखो, 5 kilometers below the surface of the earth पे हमें माइक्रोबियल लाइफ मिलती है, बैक्टीरिया टाइप ऑफ माइक्रोब्स. तो 5 किलोमीटर तक तो चलो मैं बोल सकता हूं है. क्या सेंटर में भी मिलता है? क्या 5 किलोमीटर पे अर्थ का सेंटर आ जाता है? डू यू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एट 5 किलोमीटर्स? वी डू नॉट, राइट. तो मुझे नहीं पता, वो जीके लगाऊं तो बता सकता हूं कि नहीं आता, पर अपन जीके इसमें जनरली लगाते नहीं ना. एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाते हैं, दैट वी हैव कवर्ड इन आवर क्लासेस. तो वो पता नहीं यार. सो इसलिए आर दे एबल टू एग्जिस्ट एट द मोल्टन सेंटर ऑफ द अर्थ? कांट से. 5 kilometers deep, yes. Anything beyond that, I wouldn't know. C, a thorough survey of a planet's surface is insufficient to establish beyond a doubt that the planet contains no life. अब सी बोल रहा है कि अगर आपने प्लैनेट की सरफेस चेक कर ली और आपको कोई लाइफ फॉर्म नहीं मिली, तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे ये नहीं बोल सकते दैट दिस प्लैनेट हैज नो लाइफ. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. व्हाई? Because life may not always exist on the surface. Life can also be found 5 kilometers below the surface. तो अगर आपने सिर्फ सरफेस देखी और वो बिलो द सरफेस नहीं देखा, तो हो सकता है लाइफ हो, पर आप मिस कर गए हो. सो दिस इज ट्रू. डी, लाइफ probably exists on sun orbiting comets which are cold agglomerations of space dust and frozen gases. Can't say. हमें देखो, प्लैनेट्स का तो पता है, हमें कॉमेट्स का तो कुछ नहीं पता यार. तो सन ऑर्बिटिंग कॉमेट्स में होती है कि नहीं होती है, हम नहीं कह सकते. और देखो यहां पे ना, अगर ये फ्रोजन नहीं होता तो वी कुड हैव स्टिल कॉल्ड इट ओके, वी कुड हैव कॉल्ड इट ट्रू.
बट अब ये फ्रोजन है, हमें ये पता है गैसेस राइज होनी चाहिए, यहाँ पे तो गैसेस राइज भी नहीं कर रही. So these are places where you do have gases, but those gases are not rising. So therefore we wouldn't really be in a position to be definite. तो ये भी कहां से E, finding bacterial remains in coal and oil would establish that the bacteria had been feeding on substances that had not been produced from the energy of sunlight. Can't say. आपको remains मिल रहे हैं ना, ये तो वो remains तो जरूरी थोड़ी है कि जहां पे remains मिले बैक्टीरिया वहीं रहते थे. For example, in certain cultures, when humans die, they are buried. तो अब हमारे remains उन cultures में हमारे remains मिलेंगे buried in the earth. From that, can we conclude that humans did not live on the surface of the earth but lived 6 foot underground? We can't, right? तो जहां remains मिले जरूरी नहीं है कि वही आपका habitat हो, and therefore can't say. And thus our answer here will be option C. So I hope that gave you enough exercise about inferences, and you'd move over to the next set of inference-based questions with greater confidence. So that's what I had brought you for today. If you want to stay connected, I have a Telegram group that you can reach out to me on. You have the QR code as well as the name. And before I sign out, here is something for you. Invest your time wisely. It is the only resource you cannot replenish. तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं where there are a lot of distractions around us, where there are a lot of things that try to grab our attention. सोशल मीडिया हुआ, कंज्यूमरिस्ट कल्चर हुई, तो एक बार वो मिनट उनको दे दिया तो फिर वो तो वापस नहीं आने वाले. एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी to constantly remind ourselves of the fact that hey, we are supposed to guard our time, our attention with our life. And so once you start doing that, you'd of course be investing it wisely, and if you invest it wisely, it automatically translates into great success for you. So that's it from me in this particular session. See you in the next one.